اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنی جگہ انشاءاللہ العزیز یہ نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، جو چیزیں ہم سنیں گے، جو باتیں ہم سنیں گے، انشاءاللہ العزیز ان پر عمل کریں گے۔ جب ہماری نیت درست ہوگی تبھی ثواب ملے گا۔ جب ہماری نیت درست ہوگی، ارادہ درست ہوگا، ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہیے، اللہ تعالی اس مجلس کی برکت سے ہمیں آخرت میں عذاب سے، جہنم سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آخرت میں عذاب سے بچا لیا، قبر کے عذاب سے بچا لیا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس مکان ہو یا نہ ہو، دنیا میں ہمارے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو، دنیا میں ہمارے پاس بنگلہ ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ نہ وہ آدمی دنیا میں ناکام ہے جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے، جس کے پاس روپے نہیں ہے، اسی طرح وہ آدمی بھی کامیاب نہیں ہے جس کے پاس روپے ہے، پیسے ہیں، جائیداد ہے، زمین ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، عہدہ ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کو اللہ راضی ہو جائے، کامیاب وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، کامیاب وہی ہے جس کو نام اعمال دائنی ہاتھ میں مل جائیں گے، کامیاب وہی ہے جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا۔ ہماری کامیابی یہی ہے۔ باقی یہ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، اچھے مکان میں بھی گزر جائے گی، کچے مکان میں بھی گزر جائے گی، اچھے کپڑوں میں بھی گزر جائے گی، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی گزر جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اچھے کپڑوں میں زندگی گزار لی، اچھے مکان میں زندگی گزار لی، ہمارے پاس عہدہ بھی تھا، بنگلہ بھی، روپے بھی، جائیداد بھی، گاڑی بھی، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے ہم بچ نہ پائے، تو ایسے مکان کا، جائیداد کا، بنگلے کا، عہدے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اصل عزت وہی ہے جو انسان کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے، جہنم سے بچائے۔ انسان کو دنیا میں آرام ہو نہ ہو، انسان کو آرام قبر میں ہونا چاہیے۔ انسان کو کسی جگہ سکون ملے نہ ملے، لیکن انسان کو قبر میں سکون ملنا چاہیے، انسان کو نام اعمال دائنی ہاتھ میں ملنا چاہیے۔ انسان کی کامیابی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی پکڑ سے بچا لیا اور جس کو جنت میں داخل کر لیا، وہی کامیاب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر وہ آفیسر بن جائے گا، پھر وہ مکان بنائے گا، پھر وہ مکان بنا کے اس کے بعد ہمیں آرام کرائے گا، عیش کرائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی انسان کو صرف قبر تک ساتھ آئے گی۔ قبر کے بعد والی جو کامیابی ہے وہ وہی کامیابی ہے جس کو اللہ نے کامیابی بتایا ہے۔ کامیابی وہی ہے جس کو قرآن نے کامیابی بتایا ہے۔ دنیا کی کامیابی انسان کو، دنیا کے روپے جائیداد انسان کو قبر تک ساتھ آتے ہیں، قبر کے بعد انسان کو اس کے اعمال ساتھ آتے ہیں۔ ہم اپنی جگہ انشاءاللہ العزیز نیت کریں گے، جو ہم یہاں سنیں گے انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے اپنی نیت درست کریں گے، یا اللہ مجھے بھی صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے جب ہم نیت درست کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ جب ہماری نیت لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوگی،
اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی نہیں آئے گی. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ راضی ہو جائے, لوگ ناراض ہو جائے, لوگ راضی ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. جب ہمارا مقصد یہ ہوگا اللہ راضی ہونا چاہیے, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ ہماری مدد کے لیے, جس آدمی کی نیت درست ہو اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے آسمان سے اتارے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں فرشتے. لیکن جب مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک درخت تھا, لوگ اس کی پوجا کرتے تھے, لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. ایک بزرگ کو یہ خیال آیا اس درخت کو کاٹ لینا چاہیے, کیونکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کو پوج رہے ہیں, ایک درخت کو سجدہ کر رہے ہیں, جائز نہیں ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے سامنے اس ماتھے کو جھکانا ہے. ہم کیوں ایک درخت کے سامنے اس ماتھے کو جھکائیں گے؟ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اٹھا, یہ خواب کی بات ہے, وہ اٹھا اور اپنے دل میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس درخت کو گرا لوں گا. جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک آدمی آیا اور اس سے کہا کہ اس درخت کو مت گراؤ. کیوں گراؤ گے؟ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں مجھے گرانا ہے, کسی بھی صورت میں اس کو گرانا ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے پیدا کیا ہم اللہ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن ہمارے جو بھائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پوچھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں جھکا رہے ہیں, ایک درخت کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, یہ شرک ہے, اور میں چاہتا ہوں میں اس درخت کو گرا دوں. اس آدمی سے, اس اللہ والے کی بزرگ کی لڑائی ہوگی, اور اس نے جو نیک آدمی تھا, جو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا, اس نے اس کو اٹھا کر نیچے پٹکا, اور پھر آخر میں اس آدمی نے کہا کہ دیکھو مجھے مارنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, میرے ساتھ جھگڑا کرنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, درخت گرانے سے بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, درخت گرانے سے بھی عوام کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا, لوگوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں, میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں. یہاں جو ہمارا علاقہ ہے لوگ بہت غریب ہیں اور مجھے بہت پیسے ہیں, میں آپ کو روزانہ شام کو سرانے کے نیچے روزانہ کچھ اماؤنٹ رکھوں گا, کچھ پیسے رکھوں گا, آپ وہ روزانہ اپنے پیسے اٹھانا اور غریبوں میں تقسیم کرنا, اس سے فائدہ ہوگا. غریبوں کی مدد ہوگی, یتیموں کی مدد ہوگی, بیواؤں کی مدد ہوگی, اس سے فائدہ ہے. درخت گرانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس نے بولا ہاں یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر میں درخت گراؤں گا اس سے کیا فائدہ ہے, لوگوں کا کیا فائدہ ہو. جب میں لوگوں کو پیسے دوں گا, لوگوں کی مدد کروں گا, غریبوں کی مدد کروں گا, اس سے بہت فائدہ ہوگا. اب کچھ دن ہو گئے, روزانہ وہ آدمی جو ہے اس کو سرانے کے نیچے پیسہ رکھتا تھا, یہ اٹھاتا تھا اور یہ جا کے غریبوں کی مدد کرتا. اب کچھ دن ہو گئے وہ آدمی پیسے رکھتا, لیکن جب بہت عرصہ ہو گیا وہ آدمی جو ہے اب سرانے کے نیچے پیسے نہیں رکھتا تھا, اس نے پیسے دینا بند کر دیے. اب اس کو پھر وہی خیال آ گیا کہ نہیں مجھے درخت گرانا ہے. یہ چلا اپنے, اس نے کلاڑی اٹھائی, اس نے کہا یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ دھوکے باز ہے, مجھے اس کی باتوں کا پہلے سے یقین نہیں تھا, مجھے پتا تھا یہ دھوکہ دے گا, اس نے دھوکہ دیا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. جب وہاں پہنچا اور پھر وہی آدمی اس کو آگے آ گیا, بولا کہاں چلا؟ کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا, آج میں درخت گرا کر ہی رکھوں گا, آج چھوڑوں گا نہیں. مجھے پتا ہے اس دن میں نے تجھے بہت پٹائی کی تھی, لیکن آج تجھے چھوڑوں گا نہیں, آج تجھے بھی پٹائی کروں گا اور درخت کو گرا کر ہی گرا کر رہوں گا, تو دھوکے باز ہے. اس نے بولا نہیں درخت نہیں گرانا ہے, کیا فائدہ ہے. جب آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا, بات بڑھتی گئی اور ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. جب آج لڑائی ہوئی, اس کو ارادہ تھا اس کو میں نے پہلے گرایا, آج بھی گراؤں گا. آج اس آدمی نے اس کو ایسا پٹکا ایسی پٹائی کی کہ اس کو نانے کا دودھ یاد آ گیا کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے بولا مجھے یہ بتا, اب نہ مجھے پیسے چاہیے نہ مجھے کچھ کرنا ہے, یہ بتا کہ یہ مجھے اب یہ جاننا ہے, پہلے تو پیسے دیتا تھا روزانہ, پیسے رکھتا تھا سرانے کے نیچے, لیکن اب کیوں نہیں رکھتا ہے, بس مجھے یہ بتا. اور دوسری وجہ مجھے یہ جاننی ہے
پہلے تو میں نے تیری پٹائی کی تھی, آج تیرے اندر یہ طاقت کیسے آ گئی کہ آج تو نے مجھے ایسی دھلائی کی کہ مجھے ایسا خیال بھی نہیں آیا تھا کبھی سپنے میں بھی تو مجھے ایسی پٹائی کرے گا, ایسی دھلائی کرے گا. اس نے اس کو جواب دیا کہ پہلے جب تو نکلا تھا اس درخت کو گرانے کے لیے تیرا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی رضا, لوگوں کو شرک سے بچانا, لوگوں کو کفر سے بچانا. لیکن آج تیرا وہ مقصد نہیں تھا, آج تیرا وہ روپے تیرا مقصد تھا. پہلے تجھے پیسوں کا مقصد نہیں تھا, غرض نہیں تھا, غرض اللہ کی رضا تھی. لیکن آج تیری غرض اللہ کی رضا نہیں, آج تجھے پیسے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا تھی تو طاقت بھی تھی, قوت بھی تھی, اللہ کی مدد تھی. لیکن جب نیت بدل گئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئی. پہلے بھی وہی آدمی تھا, اس کو آدمی نے پچھاڑ دیا, لیکن جب نیت بدل گئی اب وہی آدمی اس پر غالب آ گیا. اگر ہم نیت یہ کریں گے ہمارا مقصد اللہ کی رضا, ہماری جو مقصد ہے, ہمارا جو مدعا ہے, اللہ راضی ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے چاہیے, آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے چاہیے, قبر کے عذاب سے بچنے چاہیے, ہماری اولاد نیک صالح بن جائے, جو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کرے, تو بس یہی ہماری کامیابی ہے. اس کے علاوہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ ہمیں واہ واہ کریں, لوگ ہماری تعریف کریں, یہ کامیابی نہیں ہے, اور نہ اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ کے اندر ایک دشمن جو اللہ کا دشمن تھا, اسلام کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے پہ آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اٹھایا, نیچے بڑک دیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر نیچے گرا دیا. لیکن اس نے اتنی بڑی گستاخی, اتنی بڑی توہین کی کہ اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پہ تھوک دیا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چھوڑ دیا. وہ آدمی حیران ہو گیا, بولا تو اب تو مجھے اور بھی زیادہ پٹائی کرنی چاہیے تھے, اب تو میں نے اس سے بڑی غلطی کی. پہلے تو میرا اور آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, میں چلو اللہ کا دشمن تھا, قرآن کا دشمن, اسلام کا دشمن, لیکن میرا آپ سے کوئی زمینی جھگڑا, جائیداد کا جھگڑا, کبھی آپ سے بحث مباحثہ, کبھی لڑائی, کبھی جھگڑا, اس وقت تو آپ میرے سینے پہ چڑھ گئے تھے. اب تو میں نے آپ کی توہین کر دی, اب میں نے آپ کی گستاخی کی, اب آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, ہمیں اس جواب کو سننا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی, کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, میری سنت کو لازم پکڑو, میرے طور و طریق پر چلو, اور جو خلفاء راشدین ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, ان کے طور و طریق پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق پکڑنا ہے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے, ہمیں خلفاء راشدین کے عمل, ان کی زندگی کو اپنانا ہے, تبھی جا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا, صحابہ کرام کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا, پھر ہم ناکام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, پہلے جو میں آپ سے لڑائی کر رہا تھا, پہلے جو میں آپ کے سینے پہ چڑھ گیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ آپ کو میں قتل کروں, وہ اس وقت میری نیت یہ تھی کہ اس وقت آپ اللہ کے دشمن ہو, اسلام کے دشمن ہو, خدا کے دشمن ہو. آپ نے اس وقت آخرت کو بلا دیا تھا, آپ کو اس وقت آخرت کی فکر نہیں, آپ نے اس وقت قرآن کو چھوڑ دیا تھا, آپ اس وقت اسلام کے مقابلے میں جنگ لڑ رہے تھے. لیکن جب آپ نے میرے سینے پہ, میرے چہرے پہ تھوک دیا, تو میں نے سوچا اب اگر میں آپ کو ماروں گا تو وہ میری ذات کا مسئلہ آ جائے گا, اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. جب آپ اللہ کے دشمن تھے, اسلام کے مقابلے میں تھے, تو میں آپ کے مقابلے میں تھا, لیکن جب میرے مقابلے میں آپ آ گئے, میں نے چھوڑ دیا, جاؤ, مجھے کوئی آپ سے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں.
हमारी नीयत यह होनी चाहिए अल्लाह ताला की रजा, हमारा हर काम अल्लाह ताला की रजा के लिए होना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला की रजा के लिए करेंगे अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें खुशनुदी है और आखिरत में हमें सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों के दिखलावे के लिए करेंगे, लोग वाह वाह करेंगे दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं हो। हम पहले इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये नियत करेंगे कि हम जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह राजी है, सारा जहां नाराज हो जाए हमें कोई परवाह नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हो जाए, सारी दुनिया खुश हो जाए, हमें उसकी खुशी का क्या फायदा है? जिस खुशी से हमें आखिरत में कब्र में अजाब हो, मरने के बाद अजाब हो। ये 60 साल की जिंदगी है, ये घर में भी गुजर जाएगी, एक टीन शेड के अंदर भी गुजर जाएगी, रास्ते में भी गुजर जाएगी, शहर में भी गुजर जाएगी, गांव में भी गुजर जाएगी, ये किसी न किसी तरीके से गुजर जाएगी। अल्लाह ताला ने इसका वादा भी ले लिया है कि मैं इसको गुजार दूंगा, इसको मैं किसी न किसी तरीके से आपका इंतजाम करूंगा। लेकिन कब्र के अल्लाह ताला ने गारंटी नहीं ली, कब्र के बाद वो हमें उसके लिए अमाल करने पड़े, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। इस तरह हम अपने घर चमकाने के लिए, उसको बनाने के लिए मेहनत करते हैं, इसी तरह जो हमारा असली वतन है, जो हमारा असली घर है, वो कब्र है, हमें उसको सजाने के लिए, उसको चमकाने के लिए दुनिया के अंदर मेहनत करनी है। जिस तरीके से हम अपने घर में लाइटिंग लगाते हैं, मैटिंग लगाते हैं, बाकी चीजें, कब्र में न तो कोई लाइट है, न वहाँ कोई साथी है, न कोई वकील है, न कोई दोस्त, कोई वहाँ काम नहीं आता है। वहाँ वही काम आता है जो इंसान ने दुनिया के अंदर नेक अमाल किए होंगे। ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है, जो हमने दुनिया के अंदर किया होगा वही हम आखिरत के अंदर काटेंगे। अगर हमने धान बोया है, धान काटेंगे, हमने धान बोया है और हम ये इरादा करेंगे मक्की काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम नेक अमाल नहीं करेंगे, हम दूसरों के दिखलावे के लिए करेंगे और हम सोचेंगे इसमें आखिरत में सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब दुनिया में अखरोट के दरख्त से कभी सेब नहीं उतरा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान नेक अमाल न करे, दूसरों की बुराइयों के पीछे लगे रहे, दूसरों की गिरफ्तें करे, अपनी नमाजों को जाया करे, फिर वो ये बोले कि मुझे अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह की खुशनुदी मुझे मिल जाएगी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आखिरत में सिफारिश करके बचा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ऐसे अमाल करेंगे जिससे अल्लाह खुश हो जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्कुत। मुसलमान जिसको अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान है, जिसको ये ईमान है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मुझे हिसाब देना है, उसको ऐसा होना चाहिए कि या तो वो अच्छी बात बोले, दीन की बात बोले, कुरान की बात बोले, हदीस बोले, लोगों को अच्छी बात बोले, लोगों को दीन की तरफ बुलाए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है फल यस्कुत, तो फिर वो चुप रहना चाहिए, फिर वो खामोश रहना चाहिए। मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि जब मुसलमान बात करे लोग तमन्ना करने चाहिए काश ये और बात करे, काश ये और दीन की बात करे। लेकिन जब मुसलमान अब उसी जुबान से, पहले तो वो मुसलमान ही कैसा मुसलमान है, जब वो उधर से नमाज पढ़ेगा उसी जुबान से वो अलहम्द शरीफ पढ़ेगा, उसी से वो सूरा पढ़ेगा, उसी से वो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसी से वो दुरूद पाक पढ़ेगा, फिर उसी जबान से वो लोगों को गालियां देगा, इसी जबान से वो लोगों की गैबत करेगा, इसी से वो दूसरों को इज़ा पहुंचाएगा। अब ये बताओ कि उसकी नमाज, उसके रोजे, उसकी जब जबान ही साफ नहीं है तो उस जबान से वो किस तरीके से सूरे फातिहा, उससे वो कुरान कैसे पढ़ेगा? पहला चीज है कि हमारी जबान साफ होनी चाहिए। जिस तरह दूध हम तभी उस बर्तन में डालेंगे जब वो बर्तन साफ हो, अगर वो बर्तन नापाक होगा, बताओ जब हम उसमें दूध डालेंगे वो बर्तन
नापाक है, पहले से ही वो गंदा है। और जब हम दूध उसमें डालेंगे, बताओ वो दूध पाक और शफाफ है, साफ है, वो पाक है, साफ तो अल्लाह ताला की नेमत है, वो गंदा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गंदा हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि बर्तन नापाक है। इसी तरीके से जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे या दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे, लेकिन हमारी ज़बान ही गंदी है, गालियों की वजह से हमारी ज़बान ही गंदी है, दूसरों को तकलीफ देने की वजह से, बताओ हमारी उन नमाजों का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, बल्कि हमने उससे बड़ी तौहीन की। एक गंदी ज़बान से हमने कुरान की तिलावत की, गंदी ज़बान से हमने दुरूद पाक पढ़ा, उससे क्या फायदा हो? और भी हमने और गुनाह कमाए। कुरान अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। जब एक आदमी नमाज पढ़ता है, वो बाहर निकल कर गिबत करता है, नमाज पढ़ता है, उसको गाली देता है, ऐसी नमाज का क्या फायदा? कुरान तो कहता है कि नमाज बेहयाई से रोकती है। जब मैं नमाज पढ़ूं और नमाज मुझे बेहयाई से न रोके, इसका मतलब है कि मैंने नमाज पढ़ी ही नहीं। अगर मैंने नमाज सही तरीके से पढ़ी होती तो नमाज मुझे जरूर बेहयाई से रोकती, लेकिन मेरी नमाज नाकिस थी, मेरी नमाज अधूरी थी, इसी वजह से उस नमाज ने मुझे बेहयाई से नहीं रोका। मेरी नमाज के अंदर कोताही है, नमाज के अंदर कमी है, इसी वजह से उस नमाज ने मुझे बेहयाई से नहीं रोका। इंसान अगर नमाज भी पढ़े फिर भी उसकी जबान गंदी हो, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी नमाज नाकिस है, मेरी नमाज अधूरी है। उसको पहले प्रैक्टिस और कोशिश करनी चाहिए, पहले उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। जब नमाज दुरुस्त होगी, अगर कोई मुसलमान है और उसकी जबान गंदी है, उसकी जबान पे खोश बातें हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान और झूठ बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब हम उधर से मुसलमान भी है, उधर से झूठ बोलते हैं, आप खुद ही अंदाजा फरमाओ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उसके मुताबिक हम मुसलमान है कि नहीं है? जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि नहीं आप मुसलमान नहीं हो, हम खुद कितने भी बोले हम ये है वो है पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं है। हमें कुरान बोलना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बोलना चाहिए तो मुसलमान। हमारी जबान सही होनी चाहिए। जब हम जबान बोले तो ऐसा लगना चाहिए कि कुरान बोल रहा है, हदीस पाक इससे जड़नी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मोदी बोल रहा है, दीन की दावत दे रहा है। जब हम दूसरों को दीन की दावत के बजाय लोगों को गालियां देंगे, उसी का असर पड़ेगा जो हम लोगों को यहाँ से दे रहे हैं, गालियों का असर। और गालियों का असर यह होगा कि वो मुझसे दूर हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, वो मस्जिद से दूर हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सुबह होती है तो ज़ुबान जो है सारे आज़ा के सामने हाथ जोड़ती है, इत्तक़िल्लाह फीना, ए ज़ुबान जरा सही से चलना। अगर तू सही चलेगी तो हम भी सही हैं, लेकिन अगर तूने लोगों को गालियां दी, अगर तूने बदकलामी की, अगर तूने लोगों को इज़ा पहुंचाई, गलती तेरी होगी लेकिन पिटाई हमारी होगी। गलती तेरी होगी और हमारे कमर की पिटाई होगी, गलती आपकी होगी, टांगे टूटेंगी। अगर आप सही सालिम हैं, हम भी सही सालिम हैं, लेकिन अगर आपने अपना इस्तेमाल गलत किया, याद रखना गलती आपकी होगी, पिटाई हमारी होगी। जब हम जबान को सही इस्तेमाल करेंगे, गोया कि हमारा इस्लाम और ईमान महफूज है। लेकिन जब हमारा जो कंट्रोल जबान पर नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम मुसलमान नहीं है, बल्कि हम दायरे इस्लाम से बाहर। हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए जबान पे कंट्रोल। अगर आपको जुबान पे कंट्रोल हो गया, दुनिया की मुसीबतों से भी अभी आप बच जाओगे, आखिरत की मुसीबतों से भी बच जाओगे। पहले कोशिश करनी है हमें जबान पे कंट्रोल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उम्मत में किस चीज का सबसे ज्यादा डर है कि उसकी वजह से लोग आखिरत के अंदर अजाब में जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-फम, मुझे सबसे ज्यादा जो डर है, जो खौफ है, जिसकी वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे, वो जबान है। लोग जबान का गलत इस्तेमाल करेंगे, लोग अपने मुसलमान भाई को गाली देंगे, लोग अपने मुसलमान भाई को इज़ा पहुंचाएंगे जबान के जरिए, फिर आखिरत में पकड़ होगी। लिहाजा हमें जबान का सही इस्तेमाल करना। ये जबान इतनी अहम है, छोटा सा जिस्म है, छोटी सी चीज लगती है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यस्मलनी मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह। जो आदमी मुझे ज़बान की गारंटी दे देगा और जो मुझे शर्मगाह की गारंटी दे देगा, उसको मैं दुनिया में ही जन्नत की गारंटी दे देता हूँ। आप ज़बान की गारंटी दे दो, शर्मगाह की गारंटी दे दो, शर्मगाह को कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। आप कभी गारंटी दे दो कि कभी भी दुनिया के अंदर आप ज़बान को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं आपको दुनिया में ही जन्नत की गारंटी दे देता हूँ। ये कितनी बड़ी चीज है। दुनिया में उस आदमी को जन्नत की बशारत है, जन्नत की गारंटी है, जो ज़बान का सही इस्तेमाल करेगा तो शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेगा। आप जरा सोचो अल्लाह ताला की कारीगरी पर, अगर हाथ को तकलीफ हो जाए ये 2 दिन के अंदर ठीक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़बान को कितना अंदर रखा है, इसी वजह से कि इसकी ज्यादा हमें हिफाजत करनी है। जो चीज ज्यादा अहम होती है वो उतना ही ज्यादा हिफाजत से रखी जाती है। अगर कोई भी चीज कोई फेंके वो कभी भी ज़बान तक नहीं आ सकती है। ज़बान कभी अगर कोई चीज फेंके ज़बान कट नहीं सकती है, क्योंकि अहम चीज है। अगर आपको दुनिया में कोई भी चीज आपने देखी, आप उसको खरीदना चाहते हो, बताओ किसके जरिए आप उसका इजहार करोगे ये चीज मुझे चाहिए? ज़बान के जरिए। अगर ज़बान नहीं है, आप दुनिया में आपने कोई चीज देखी, आप उसकी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको अंदर रखा है ताकि आप इसका सही इस्तेमाल करें। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, हम उसको एक घर में रखते हैं, फिर लॉकर में रखते हैं, लॉकर के अंदर वाला भी छोटा सा जो बक्स होता है उसके अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये चीज अहम है, इसी वजह से हम इसको इतना अंदर रखते हैं, इतना हिफाजत से रखते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर किसी के पास सोना हो, चांदी हो, घर के बाहर आंगन में डाला हो, रुपए बाहर आंगन में आज तक किसी ने नहीं फेंके। क्यों नहीं फेंके? क्योंकि अहम चीज है, जरूरी चीज है, इसी वजह से वो अंदर हिफाजत के साथ रखे जाते हैं, पर्स में रखे जाते हैं, लॉकर में रखे जाते हैं, लॉक लगा के रखे जाते हैं, क्योंकि वो अहम चीज है। उसके बगैर इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता है। इसी तरह ज़बान के बगैर इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता है सही तरीके से। इसी तरह अगर इंसान सही तरीके से ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो उसका ईमान जो है वो ना किस है, उसका ईमान जो है अधूरा है। हमें ज़बान का सही इस्तेमाल करना है। अगर हम ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे, जिंदगी में हम कभी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे ही, हम कभी जिंदगी में कभी लड़ाई झगड़े करेंगे ही नहीं, जब हमारा ज़बान के ऊपर कंट्रोल। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबग़ज़ुर रिजाल इलल्लाहि अलदुल खसीम। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा जो नापसंदीदा बंदा है, अल्लाह ताला के यहाँ जो सबसे बुरा नापसंदीदा आदमी वो है जो बात बात पे झगड़ा करता हो, बात बात पे लड़ाई करता हो। बात बात पे लड़ाई करने की वजह से इंसान अल्लाह के यहाँ कोई बड़ा नहीं बनता है, अल्लाह उससे खुश नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो अल्लाह की नजरों में जितना लड़ाई करता है उतना अल्लाह ताला की नजरों में, उतना इस्लाम की नजर में, शरीयत की नजर में गिरता ही चला जाता है। जो आदमी जितना झगड़ा करता है अल्लाह की नजर में उतना ही गिर जाता है, और जो आदमी अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है उसको उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीद बिसुरा, ताकतवर जो लड़ाई करे, झगड़ा करे और एक आदमी दूसरे आदमी को गिरा दे, ये पहलवान नहीं है, ये ताकतवर नहीं है, बल्कि ताकतवर वो आदमी है, इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। ताकतवर आदमी वो है कि जिसको गुस्से पे कंट्रोल हो, लोग उसको गालियां दे, लोग उसको इजा पहुंचाए, लोग उसको तकलीफ पहुंचाए, लोग उसको बुरा भला कहें, जब उसको गुस्सा आ जाएगा उस वक्त उसको अपने आप पे कंट्रोल हो। जब वो अपने आप पे कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसको गुस्सा जो है, जो लड़ाई जो करवा रहा है, लड़ाई पे जो उबार रहा है, शैतान पीछे उबार रहा है, जब उसने गुस्से पे कंट्रोल किया उसने शैतान को शिकस्त दे दी। और अगर वो अपने भाई मुसलमान को लड़ाई करता, झगड़ा करता, या कोई भी किसी आदमी को मारता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, अपने मुसलमान भाई की पिटाई करता, लेकिन जब उसने गुस्से पे कंट्रोल किया, लड़ाई को उसने दबा दिया, झगड़े को दबा दिया, उसने शैतान को हरा दिया, वही आदमी ताकतवर है। जब आदमी को गुस्सा आ जाएगा, आदमी को पढ़ना चाहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
आदमी को गुस्सा आ जाएगा, आदमी बैठ जाना चाहिए। अगर आदमी बैठ कर है, आदमी को चाहे वुजू करे, क्योंकि इंसान को जो उबार रहा होता है वो शैतानी ताकत उसके पीछे। जब इंसान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा वो शैतान भाग जाएगा, खड़ा होगा नीचे आ जाएगा, नीचे बैठा होगा वुजू करेगा। जब आदमी अपने आप को ठंडा करेगा तो वो जो शैतान का असर है वो उससे दूर जाता रहेगा। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में कुछ यहूदी आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गालियां दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा भला। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी होगी और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जवाब देने लगी। अगर उन्होंने कुछ नामनासिब कहा था तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हीं अल्फाज को उनके लिए वापस करने लगी। तो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकूनी फाहिशा, आप इनको बुरा भला मत कहो, आप इनको छोड़ दो। क्योंकि जो बुरा भला कहने वाला होता है, जिसकी जबान पे फौश गालियां होती है, जिसकी जबान बदकलामी करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु हरामुन अला कुल्ली फाहिशिन, जो बदगो आदमी होता है, जो बदकलाम करने वाला आदमी होता है, उस पर जन्नत हराम है। लिहाजा हमें अपने आप को जबान को बदगोई से, बदकलामी से बचाना है। जबान पर जिसको कंट्रोल होगा वो समझो दुनिया के अंदर ही वो, उसको दुनिया में ही जन्नत की बशारत है। दुनिया में वो गिबत से बच जाएगा, दुनिया में वो झूठ से बच जाएगा, दुनिया में वो बोहतान लगाने से बच जाएगा। और अक्सर लोग दुनिया में जो गुनाह करते हैं वो यही गिबत करते हैं। जब आदमी उन गुनाहों से बच गया, जब आदमी खुद बदला लेता है, अल्लाह की मदद नहीं आती। और जब आदमी मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह की मदद आती। एक यहूदी आया, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगा, नामुनासिब बुरे अल्फाज कहने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहीं तशरीफ फरमा दे। तो पहली मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंट्रोल किया, कुछ नहीं कहा। दूसरी मर्तबा जब उसने फिर बुरा भला कहा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तीसरी मर्तबा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो जवाब देने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तक जब आप खामोश थी तो फरिश्ते इनको जवाब दे रहे थे, लेकिन जब आपने जवाब देना अपनी तरफ से शुरू कर दिया, फरिश्ते यहाँ से चले गए। जब आप अपनी जबान पे कंट्रोल करोगे, आपको कोई बुरा भला कहेगा, अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए आएगा, अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम करेगा, वो खुद ही सारा मसला हल हो जाएगा। आप ये सोचो, आप जो बदला लोगे वो ज्यादा खतरनाक होगा जो अल्लाह लेगा। आप ताकतवर हो, अल्लाह ताकतवर है। जब आपने अपना मसला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अब अल्लाह जाने उनके साथ क्या करेगा। लेकिन आपको कोई गाली दे, मुझे कोई गाली दे, आप खुद उठ रहे हैं बदला लेने के लिए, फिर अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। एक बुजुर्ग जो है, उनका वाकया है, वो रास्ते से चल रहे और उधर से अभी नई नई शादी हुई थी, वो आपस में चल रहे। जो अल्लाह ताला का वली, जो नेक बंदा था, उसी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो उसने पैर नीचे डाला, वहां से कुछ कीचड़ या वहां से कुछ गंद, कुछ गारा उठा, उस जो मियाँ है उसकी बीवी के दामन पे गिर गया। अब अंदाजा करना इसको, इसमें हमारे लिए क्या सबक। वो जो उसका मियाँ था वो उठ के आ गया और जो अल्लाह ताला का नेक बंदा था, जो अल्लाह ताला का वली है, उसको एक चपात लगा दी, एक थप्पड़ लगा दी। जो अल्लाह ताला का नेक वली था, नेक बंदा था, वो चले गए, बोला कोई बात नहीं, होता रहता है, गलती थी। अब जब ये आदमी घर पहुंचा जिसने इस बुजुर्ग को थप्पड़ मारा था, अभी ये घर पहुंचा ही नहीं, घर पहुंचने से पहले ही अल्लाह ताला ने इसको पकड़ लिया और अल्लाह ताला ने इसको दुनिया के अंदर ही बदला ले लिया, उसी वक्त वो मार गया। अब वो दौड़ के आ रहे हैं, माफी दे दो, हमें गलती हो गई। उसने बोला मैंने क्या किया। जब मेरे यहां से कीचड़ उठा था तो जिसके दामन पे गिरा था, आप ये मुझे बताओ, उसने मुझे कुछ बोला था?
उस औरत ने मुझे कुछ बोला था? उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन हाँ जो उसका हस्बैंड था, जो उसका शौहर था, उसको उससे मोहब्बत थी, तो उसने मुझे बदला ले लिया। इसी तरीके से जब आपने मुझे थप्पड़ लगा दिया तो मैंने कुछ नहीं बोला, अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत थी तो अल्लाह ताला ने खुद बदला ले लिया। जब आप खुद बदला लेने की कोशिश करोगे, खुद ताकतवर बनोगे, अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। अपने मामला को, अपने मसले को अल्लाह की तरफ सुपुर्द कर देंगे, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। जब हम किसी की गिबत करेंगे, हमारे नामे आमाल कल कयामत के दिन वो ले जाएगा और उसकी बुराइयां हम अपने सर के ऊपर ले जाएंगे। क्या फायदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो फकीर कौन है, मोहताज कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला दिरहम लहु वला दराहिम, वही आदमी तो है जिसको रुपए न हो, जिसको पैसे न हो, जिसको जायदाद न हो, वही तो मुफलिस है, वही तो फकीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं वो नहीं, बल्कि वो आदमी मुफलिस है जिसने दुनिया के अंदर नमाजें पढ़ी होंगी, दुनिया में उसने ज़कात दी होगी, दुनिया में उसने रोजे रखे होंगे, दुनिया में उसने बहुत नेक अमाल किए होंगे, लेकिन उसने क्या किया होगा? किसी को गाली दे दी, किसी का हक खाया होगा, किसी की जमीन दबाई होगी, किसी की जायदाद दबाई होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी की गिबत की होगी, किसी का बहतान लगाया होगा। जब कल कयामत में अल्लाह ताला हिसाब लेगा, वो लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे अल्लाह इसने मेरी गिबत की है। दूसरा आएगा, वो कहेगा या अल्लाह इसने मुझे गालियां दी है। दूसरा आएगा, वो कहेगा या अल्लाह इसने मेरे पैसे खाए हैं। दूसरा आएगा, कहेगा या अल्लाह इसने पहले मेरी जमीन खाई है, मेरी जमीन दबाई है। अल्लाह ताला बोलेगा अच्छा बताओ क्या बात है। उस आदमी को अल्लाह ताला खड़ा करेगा, अल्लाह ताला बोलेगा इस आदमी को बताओ, देखो इसके नाम आमाल के अंदर कितनी नमाजें। वो आदमी नमाजें ले जाएंगी, फिर जब वो नमाजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद वो लोग इसके रोजे ले जाएंगे, उसके बाद ज़कात, उसके बाद सदका, खैरात, सारी चीजें वो ले जाएंगे। जब इसके पास सारे अमाल खत्म हो जाएंगे, जब इसके पास कुछ नहीं बचेगा, अल्लाह ताला बोलेगा बताओ तुम्हारे गुनाह कहाँ हैं। अल्लाह ताला उस आदमी के जिन लोगों की इसने गिबत की है, उन लोगों के गुनाह इस आदमी पे डाल दिए जाएंगे, फिर इसको उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हमारी नमाजों का क्या फायदा? जो हम नमाज भी पढ़ेंगे, गिबत भी करेंगे, तो ऐसी नमाज का क्या फायदा जो हमें कल क़यामत में अल्लाह के अज़ाब से ना बचा सके। वो नमाज, अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, लोगों की गिबत भी कर रहे हैं। हमारा नमाज पढ़ने का मकसद अल्लाह ताला राजी हो जाए। हम जब ज़कात देते हैं, सदकात, खैरात, इस वजह से अल्लाह राजी हो जाए, आखिरत में अज़ाब से बच जाए। लेकिन जब हम उधर से नेक अमाल करके भी जिनकी हम गिबत कर रहे हैं, हम उनको वो सारी नमाजें ले लेंगे, हम जिनसे दुश्मनी, वो सारी नमाजें ले लेंगे, वो सारी गुनाह उनको अपने ऊपर, उनके अपने ऊपर डाल देंगे। हमसे बड़ा दुनिया के अंदर कोई बेवकूफ है? कोई नहीं है। जब हमारी कोई गिबत करेगा, हमारा कोई हक खाएगा, हमें कोई गालियां देगा, खुश होना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारा भी कोई गिबत करने वाला है, खुश हो जाना चाहिए। क्यों? कि जब वो गिबत कर रहा है तो वो अपने अमाल, जो नेक अमाल है, वो आपके नाम में अमाल के अंदर डाल रहा है। लेकिन बेवकूफ आदमी वो है जो उससे लड़ाई कर रहा है, जो उससे झगड़ा कर रहा है। जब आदमी कल क़यामत में मोहताज होगा, अल्लाह ताला फरमाते यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखी, अपना भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, अपनी औलाद भाग रही होगी। उस वक्त वो जो दुश्मन है आपका, वो आपके नाम में अमाल में अपनी नमाजें डाल रहा है। अपना भाई भाग रहा है, बहन भाग रही, औलाद भाग रहे, सारे घर वाले भाग रहे, लेकिन ऐसे वक्त में वो नाम अमाल आपको दे रहा है। तो उससे बड़ा हमदर्द दुनिया के अंदर कोई है? कोई नहीं है। ऐसा आदमी जो उसकी नेक अमाल हमारे अमाल में आ रहे। हम अपने ज़बान को, अपने आप को जब बचाएंगे, जब हमारा अपने आप के ऊपर कंट्रोल होगा, तो अल्लाह ताला की जब ज़बान पर कंट्रोल होगा, हम दुनिया के अंदर, हम दुनिया में बहुत सारे ऐबों से, बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। हदीस पाक में है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की खूबी ये है कि जो लायानी चीजें हैं,
जो लघु चीजें हैं, बेहुदा चीजें हैं, आदमी इनको तर्क कर दे, जिनमें न दुनिया का सवाब है न आखिरत का सवाब है। इन चीजों को तर्क करना ही उसके बाद भी जाकर आदमी उसका ईमान मुकम्मल हो जाए। हम क्या आज हम अगर देखेंगे अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे, हम देखो हम अपना जो सबसे कीमती वक्त जो है हम किन चीजों के अंदर सर्फ करते हैं, किन चीजों के अंदर हम ज़ाया कर रहे हैं। फेसबुक चलाने के अंदर, व्हाट्सएप चलाने में, बाकी चीजों के अंदर ना दुनिया का फायदा है ना आखिरत का फायदा है। अपना जो सबसे कीमती वक्त है हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं हमें। अपना वक्त बर्बाद, आंखें बर्बाद, नाम अमाल वो भी बर्बाद, नमाजें बर्बाद, ज़कात, सारी चीजें हमारी बर्बाद होती। जिस आदमी को अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा उसको दिल पे भी कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा दुनिया में जो आदमी फेसबुक चलाएगा फिर बोलेगा कि मेरी आंखों पे कंट्रोल है, मैं बेहयाई नहीं देखता हूं। जब भी आदमी फेसबुक ऐसे एक क्लिक करता है नीचे से बेहयाई निकलती है। हम लोग अपने अवकाश जो है गलत चीजों के अंदर जाया कर रहे हैं, जिसमें ना दुनिया का फायदा है ना आखिरत का फायदा है। दुनिया में अगर एक मर्तबा इंसान सुबहान अल्लाह कहे, क्या कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। कल कयामत में मरने के बाद 500 साल अगर इंसान इबादत करेगा, कितने? 500 साल। उसका जो सवाब होगा उतना ही सवाब होगा जितना इंसान दुनिया में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे। एक मर्तबा इसको सुबहान अल्लाह कहेंगे, आखिरत में हमारे लिए जन्नत में घर बन जाता है। हम उस घर को छोड़ देते हैं, हम बेहयाई फजूल चीजों के अंदर, जिससे हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, जिससे हमारी नमाजें जाया हो रही है, उसके अंदर हम लगे हुए हैं। बेहयाई चीजों के अंदर, बेहयाई जब तक बेहयाई को हम तर्क नहीं करेंगे, जब तक हमारी जुबानों पे कंट्रोल नहीं होगा, आंखों पे कंट्रोल नहीं होगा। हदीस पाक में है जो किसी के पर्दे को देखता है, जो किसी के पर्दा, जो औरत का सारा जिस्म जो पर्दा ही पर्दा है, जो औरत के जिस्म के किसी भी हिस्से को देखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐसे बंदे पर अल्लाह की लानत। जो किसी के पर्दे को देखता है अल्लाह की उस पर लानत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर लानत, अल्लाह की लानत है। उसके बाद उसको क्या चाहिए फिर? उसकी बर्बादी में कोई शक है? उसके बाद हम फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं, किसी औरत को देख रहे हैं, किसी हीरोइन को देख रहे हैं, कोई भी एबीसीडी देख रहे हैं, वो तो बेहयाई है। इस्लाम में कहाँ जायज है? देख रहे हमारा जब जुबान पे कंट्रोल नहीं, आंखों पे कंट्रोल नहीं, दिल पे भी कंट्रोल नहीं। जब गुनाह की इब्तिदा होती है, गुनाह का जब आगाज होता है, या जुबान से होता है या आंखों से होता है। जब हम बेहयाई चीजों को तर्क नहीं करेंगे तब तक हमारा ईमान जो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दो, अल्लाह ताला आपको भी इन बेहयाई चीजों से बचाए और मुझे भी इन बेहयाई चीजों से बचाए। मुख्तसरन में 5 मिनट और लेता हूँ आपके। एक मर्तबा हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाज में गए और एक आदमी था वहां पे, वो जहां भी जाता था वो मुसलमानों को शहीद कर देता। बड़ा ताकतवर था, बड़ा ताकतवर। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुपके से गए, उस आदमी को पकड़ लिया और वो उसको पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दूसरा सहाबी था वो पीछे हट गया, बोला अब मैं इससे लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं इससे झगड़ा नहीं कर सकता। जब इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दिया, अब लड़ाई खत्म, अब झगड़ा खत्म। पहले लड़ाई थी वो इस्लाम की वजह से थी, ये अल्लाह का दुश्मन, लेकिन अब ये मुसलमान, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, अब मैं इस लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाँ नहीं, ये हमारे इस डर की वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं पढ़ रहा है, ये आखिरत की डर की वजह से नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में नहीं पढ़ रहा है, ये हमारे दिखलाने के लिए पढ़ रहा है, ये मौत से डर गया, मैं नहीं मानूंगा इसको। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार उठाई और उस आदमी को शहीद कर दिया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। बाद में ये खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली कि हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे आदमी का कत्ल किया है
کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بتاؤ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس وجہ سے کیا کہ وہ تلوار کی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیرا تھا؟ دل کے اندر آپ اتر گئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا یہ ہماری تلوار کی ڈر سے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا آپ دل کے مالک تھوڑے تھے، دل کا مالک اللہ تعالیٰ، یہ آپ کو دل کی بات پتہ چل گئی تھی۔ آپ یہ مجھے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوگا، بتا کل قیامت کے دن اس کا کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جب قیامت کا دن آئے گا لا الہ الا اللہ کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں نے تمنا کی میں اسی دن مسلمان ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، اسی دن میں نے کلمہ پڑھا ہوتا، اسی دن میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا، اسی دن جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا اس سے پہلے میرے سارے گناہ معاف ہوتے۔ ہم بولتے ہیں فلانی پڑھ رہا ہے، یہ ایسا ہے، فلانی ہے، یہ ایسا ہے، اور فلانی کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، فلانی پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، یہ مجھے پوچھا جائے گا اس کی نماز کیسی تھی؟ ہم نماز پڑھتے اس کو دیکھتے رہتے یہ کیسا پڑھ رہا ہے، یہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ ہمیں کل قیامت میں اپنی نماز کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی نماز کی فکر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی آپ دین کی دعوت دو، جو ایمان لائے گا اپنے لیے لائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ کو کل قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا اس نے ایمان کیوں نہیں لایا، اس نے ایمان کیوں نہیں لایا۔ آپ ایمان لاؤ، آپ دین کی دعوت دو، زیادہ سے زیادہ آپ دین کی دعوت دے سکتے ہو۔ آپ کو یہ نہیں کہ کوئی کیسا پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا پڑھ رہا ہے، آپ کسی کے دل میں اتر کے جا کے دیکھتے ہو کہ یہ کیسا پڑھ رہا ہے۔